Hello everyone. So today we are going to discuss some topics which is related to some current affair news, and that will be very beneficial for our exams. Okay, so we are going to start today science and technology as we were solving the questions and we had solved lots of things like AI, artificial intelligence, and machine learning, quantum computing. Okay, so this is the things which we are going to discuss in here. Okay, so now hope this is all about you all will enjoy what I am going to discuss here. And today we are going to discuss one topic which is very relevant topic for our preparation. So I thought rather making a big video, I should make a small videos. So I think small videos are very easy to learn and easy to understand as well. So we were discussing some current affair issues, and that was based on the science and technology. Okay, this is the science and technology based questions. Okay, technology based question, and there are some things like what happened. Yeah. So we discussed last time deep fake. Deep fake we discussed, and 1 minute. I'm opening social issues. So artificial intelligence and deep fake. This thing we discussed last time. There's some issue to opening this video for science and technology. Okay, rather doing science and technology, I'm going to discuss some social issues. Okay, so social issues are also important for our courses. So first, I'm going to discuss about the surrogacy. Surrogacy. Okay, so surrogacy, किराए की कोख in India. Surrogacy in India. Okay, so this is Ministry of Health and Family Welfare. Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare Regulation Act and Regulation Rules 2024. Okay, this 2024 exercise of conferred the Surrogacy Act. This was a Surrogacy Act 2021. Government make aim the surrogacy rules in 2022. So government made this rules in 2022. So Rule 7 of the surrogacy prohibited the use of donor gamete. Single woman undergoing surrogacy must use self egg. तो इसमें क्या है, सबसे पहले सेल्फ एग यूज में लेने हैं, सेल्फ एग्स, एंड इट इज a single woman. This is for the single woman and self egg. Okay, and donor sperm to avail the surrogacy procedure.
सिंगल वुमेन हो सकती है, या तो वो विडो हो सकती है, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकती है, डिवोर्सी भी हो सकती है. So both are allowed in that. Okay, and undergoing surrogacy must be self-eg. And in 2023, Supreme Court in the Arun Muthuwal, so it was the अरुण मुथुवल केस, एंड दैट वाज मस्ट. इसमें इन्होंने कहा था अरुण मुथुवल केस में, वुमेन विथ मेयर रॉकिंची कस्टर एंड सिंड्रोम, एक वुमेन थी जिसको मेयर सिंड्रोम था. सो टू अंडरगो सेरोगेसी विथ ए डोनर एग, उसने एक डोनर एग को सेरोगेसी किया था. एंड इट इज अ रेयर कॉन्जेटिबल डिसऑर्डर दैट इफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एक मेयर सिंड्रोम होता है, ठीक है, मेयर सिंड्रोम. और ये क्या करता है, दिस अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव system of the woman. Okay, that's why it causes the absolute uterine factor infertility. इससे क्या हो जाता है, infertility भी हो सकता है. So this contain the infertility. So about the surrogacy, सबसे पहले हमें types of surrogacy के बारे में पता होना चाहिए. So types of surrogacy में क्या है, पहला है intending couple means a couple who have a medical indication, and gestational surrogacy and who intend to become parent of the surrogacy. तो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है, इंटेंड टू बिकम पेरेंट थ्रू सरोगेसी. एंड जेस्टेशनल इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय सरोगेट मदर कैरी ए चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल. इम्प्लांटिंग ऑफ द एम्ब्रो, इसमें एम्ब्रो को इम्प्लांट किया जाता है in the womb, and child is not genetically related to the surrogate mother. Traditional surrogacy is a result of artificial insemination. और ट्रेडिशनल सेरोगेसी में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन. इन ट्रेडिशनल सेरोगेसी देयर इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड this is the traditional surrogacy, and this is artificial insemination of the surrogate mother with the intended father's sperm, making her biological mother of the child she carries. ट्रेडिशनल में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, और गेस्टेशनल सरोगेसी में क्या किया जाता है, मदर कैरीज द चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल, एंड चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द सरोगेट मदर. तो गेस्टेशनल में तो मतलब जेनेटिकली वो रिलेटेड नहीं होता है, तो जेनेटिकली not related. So in the gestational surrogacy, the child is not related to the genetically with the parents, but in traditional surrogacy इसमें artificial insemination होता है. तो ये मतलब biological mother के sperms, biological mother मतलब father के sperms जो होते हैं वो biological mother के साथ ही use में लिए जाते हैं. तो ट्रेडिशनल सेरोगेसी में क्या होता था, वो बायोलॉजिकली हेरिडिटरी होता था, बट यहाँ गेस्टेशनल में ऐसा कोई भी हेरिडिटरी इफेक्ट नहीं है, ठीक है. नाउ सेरोगेसी एंड इट्स टाइप. अब सेरोगेसी पता तो चले गया, किराए की कोख होती है. ओके, सो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेरोगेसी. ऑलराइट, सो सेरोगेसी एंड इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है. पहला है इंटेंडिंग कपल वो हैव ए मेडिकल इंडिकेशन, गेस्टेशनल सेरोगेसी एंड वो इंटेंड टू बिकम पेरेंट थ्रू सेरोगेसी. पहला है कि जो इंटेंडिंग कपल होने चाहिए, ठीक है, इंटेंडिंग कपल होने चाहिए जो कि गेस्टेशनल के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहते हैं. गेस्टेशनल सेरोगेसी, सरोगेट मदर कैरी ए चाइल्ड फॉर इंटेंडिंग कपल एंड चाइल्ड इज नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू द मदर. अब यहाँ पे हम टाइप्स करने वाले थे, ठीक है. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेरोगेसी. पहला टाइप है अल्ट्रुइस्टिक एंड सेरोगेसी. ओके, अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी में क्या होता है, this is no monetary compensation to the surrogate mother other than medical expenses and insurance coverage. इसमें मेडिकल दिया जाता है एक्सपेंसेस प्लस इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है, ठीक है. अब मेडिकल एक्सपेंसेस कर देंगे एंड इंश्योरेंस कवरेज हो जाएगा, ठीक है. सेकंड क्या है, कमर्शियल सेरोगेसी. इट इज फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ रिवार्ड. एंड कमर्शियल का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जो सेरोगेसी होती है, बेनिफिट्स एंड कुछ रिवार्ड्स के लिए जो सेरोगेसी होती है, इसको कहते हैं कमर्शियल सेरोगेसी, ठीक है. अब क्या है कि सेरोगेसी इज बेन्ड फॉर द फॉरेन नेशन. अब इसको बेन कर दिया गया है, इट इज बेन्ड फॉर ए फॉरेन नेशन, इट इज बेन्ड फॉर ए फॉरेन नेशन नेशनल्स इन 2015. सेरोगेसी एक्ट आया था 2021 में, ठीक है. ओनली अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी इज अलाउड. इसमें कहा गया है कि केवल
अल्ट्रुइस्टिक ही अलाउड है, ओनली अल्ट्रुइस्टिक इज अलाउड। ओके, नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड बनाया गया है, नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव एंड सरोगेसी बोर्ड। इसमें कहा गया है कि रिटन कंसेंट होना चाहिए, तो क्या चाहिए, रिटन कंसेंट, विजन कंसेंट ऑफ द मदर एंड ऑथराइजेशन ऑफ द ऑथोरिटी, एंड ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी का। सो अबॉर्शन जो होता है दैट इज रिटन कंसेंट ऑफ द सरोगेट मदर। एंड यहाँ पर एक एमटीपी एक्ट बनाया गया था, एमटीपी एक्ट दैट वाज इन 1971। ओके, सो सरोगेसी कैसी होगी, सरोगेसी का रूल है जो कि 2021 में आया है, एंड ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड की गई है, जबकि नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेटी बोर्ड भी बनाया गया है जो कि सरोगेसी के रूल्स को रेगुलेट करेगा। नाउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, एआरटी एक्ट, एआरटी एक्ट होता है एंड दैट वाज इन 2021, ठीक है। इसका मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक्ट, ओके, एंड दैट वाज इन 1971 एंड दिस इज रेगुलेट सुपरवाइज द क्लिनिक्स एंड बैंक्स। ये क्या करता है, रेगुलेट करेगा एंड क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, किसको, क्लिनिक्स को एंड बैंक्स को, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ सरोगेसी एंड हेंस इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ सरोगेट मदर। इससे क्या करेंगे कि प्रोटेक्शन हो पाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सरोगेट मदर, सरोगेट एंड मदर, ठीक है। तो सरोगेट मदर्स का प्रोटेक्शन हो पाएगा। सो MRTP एक्ट, दिस इज द ART एक्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कि क्लिनिकल एंड बैंक्स को आप रेगुलेट करेंगे, जो भी सरोगेसी बैंक है या फिर सरोगेसी क्लिनिक्स है। एंड अदर देन दैट यू आर गोइंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द सरोगेसी एंड हेंस इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द सरोगेट मदर, ठीक है। तो सरोगेट मदर को आप प्रोटेक्शन देंगे, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वन क्या है इसमें, नेक्स्ट थिंग इज दिस लाइक other key provision of the surrogacy rule, the surrogacy rule of 2022। फर्स्ट इज नंबर ऑफ द अटेम्प्ट, तो नॉट मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तक आप क्या कर सकते हैं, सरोगेसी कर सकते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। एंड सेकेंड इज ए सरोगेट मदर मे बी अलाउड फॉर अबॉर्शन ड्यूरिंग द सरोगेसी, सो अबॉर्शन is also allowed, you can go to abort the child also, it's your right। Third, intending women or couple shall purchase general health insurance, and health insurance is also allowed, health insurance is also allowed, health insurance is also allowed। So eligibility criteria क्या होता है, a married woman have a child on 25 to 35 year of age का child होना चाहिए। No woman shall act as a surrogate mother more than the once in her life, तो एक बार ही कम से मोर देन वंस के बाद आप नहीं जाएंगे, मोर देन वंस के बाद आप नहीं जा सकते हैं। एंड पॉसेस सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सर्टिफिकेट क्या होगा, जिसमें लिखा होगा कि साइकोलॉजिकली आप फिट हैं, यू आर साइकोलॉजिकली fit, you are psychologically fit। So married to 5 year wife एज 25 से 50 ईयर की जो वुमेन्स है दे आर अलाउड फॉर द सरोगेसी, एंड हस्बैंड्स जो होंगे 26 से 55 तक के होंगे। कपल मस्ट नॉट हैव एनी लिविंग चाइल्ड, और कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए कपल का, ठीक है, नो लिविंग चाइल्ड शुड बी देयर। एंड फेटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, नो फेटल इलनेस, नो फेटल इलनेस, ओके, नो फेटल इलनेस। और शुड हैव ए एसेंशियल सर्टिफिकेट, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट you are not suffering from proven infertility, or district medical board will provide you the parentage custody, एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको कस्टडी दी जाएगी। देन इंश्योरेंस कवरेज होगा जो कि 36 मंथ, सो 36 मंथ का क्या होगा आपके पास, इंश्योरेंस कवरेज होगा, कवरेज कितने का होगा, 36 मंथ का, ओके। So this is all about the surrogacy act, and that is actually important because nowadays lots of women are suffering from, like foreign women also comes to the India for the surrogacy, and we are also going outside, and this is also commercially, before that it was commercially
enumerated, but now presently that is not that much commercial, and this is just for the altruistic kind of the surrogacy which is allowed from the government of India. Now next one is abortion law in India. Abortion law in the India. Abortion Supreme Court is denied a woman apply to terminate 26 weeks. 26 वीक की क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी. इट शुड बी 26 वीक and no immediate threat to mother and it was not a case of fetal abnormality. इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए? fetal abnormality नहीं होना चाहिए. ठीक है, abnormality not should be there. Global Status Center for Reproductive Rights. More than 60 countries have liberalized and the past 30 years 4 countries like USA, El Salvador, Poland rolled the back legality of the abortion. तो इसको लीगलिटी मिल गई है अबॉर्शन को एंड दैट इज गिवन बाय द यूएसए एंड एल सल्वाडोर and Poland. Okay, and now there is the MTP Act. MTP Act 2021 up to 20 weeks जो होते हैं, up to 20 weeks एडवाइस वन डॉक्टर. एडवाइस किया जाएगा किसको? वन डॉक्टर को आप एडवाइस करेंगे. देन 20 फ्रॉम 24 वीक्स जो हो जाएंगे. ठीक है, and only in specific category, only in specific categories, only in specific category women case of 2 doctor. Now survivor of the rape, अगर कोई रेप है या फिर चेंज इन द मैरिटल स्टेटस, किसी का मैरिटल स्टेटस अगर चेंज हो गया हो, ठीक है, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट, इससे क्या होता है? रिस्क पैदा हो जाता है, रिस्क टू प्रेग्नेंट वुमेन. Okay, this is the risk. So that's why abnormality to the child and the able woman, minor pregnancy in the humanitarian setting beyond the 24 weeks के बाद आप इसको नहीं कर सकते हैं. एंड फॉइटल एबनॉर्मेलिटीज जो होंगी इसमें आपको मेडिकल बोर्ड की एडवाइस लेनी होगी. ठीक है, तो 24 वीक्स के अंदर अंदर आप एबॉर्शन करवा सकते हैं. और अभी जो MTP एक्ट है इसमें सेक्शन 312, इसका जो है सेक्शन 312 एंड 313 में अबॉर्शन को अलाउड किया गया है एंड 26 वीक कर दिया गया है. इसको टर्मिनेट कर सकते हो आप 26 वीक में. ठीक है, एंड दैट इज सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स. मोर देन 60 कंट्रीज जो है इन्होंने इसको लिबरलाइज कर दिया है, लिबरलाइज कर लिया है लो को. एंड रिस्क टू लाइफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन होंगी कोई, या फिर कोई रेप सर्वाइवल है, या फिर कोई मैरिटल स्टेटस किसी का चेंज हुआ है, उस कंडीशन में मतलब अबॉर्शन किया जा सकता है. एंड इसमें भी प्रेगनेंसी इन द ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स होंगी. लाइक 24 वीक्स अगर हो गए हैं तो कोई फॉइटल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, देन ओनली यू कैन गो टू द मेडिकल बोर्ड एंड दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट दैट यस यू आर अलाउड फॉर द abortion. Okay, so this is about the abortion rights. Okay, so these two things was I discussed and hope you enjoyed this lecture.